سینٹ الیکشن اوپن بیلٹ سے کروانے سے متعلق صدارتی ریفرنس پر سماعت۔ چیف جسٹس نے چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کے تمام اراکین کو کل عدالت میں طلب کر لیا۔ سپریم کورٹ نے سینٹ الیکشن اور اس کی پوری اسکیم الیکشن کمیشن سے طلب کر لی۔ آئین کے تحت الیکشن کمیشن کے اختیارات کو کوئی قانون کم نہیں کر سکتا، چیف جسٹس کے ریمارکس۔ حکومت اپنی شکست کو دیکھ کر اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آئی ہے۔ مریم نواز کی حکومت پر تنقیدی نشتر، کہتی ہیں سنی سنائی باتیں نہیں کرتی، وہ بات کرتی ہوں جس کا مستقع علم ہوتا ہے۔ پرامن ریلی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو پھر بھرپور جواب دیا جائے گا۔ عمران خان نے ارب پتی افراد کو ٹکٹ دیا، مسلم لیگ نون نے عام آدمی کو سینیٹ ٹکٹ دیا۔ مسلم لیگ نون نے ویڈیو اسکینڈل کی تحقیقات کے لیے درخواست الیکشن کمیشن میں جمع کرا دی۔ درخواست میں پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان، سابق وزیر اعلیٰ پرویز خٹک، سابق اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی کو بھی فریق بنایا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن کو اختیار ہے کہ کسی بھی ایجنسی سے تحقیقات کرا سکتا ہے۔ پی ٹی آئی ایم پی ایز پر پیسے لینے کا الزام لگا رہے ہیں، وہ تحقیقات نہیں کر سکتے۔ الیکشن کمیشن ویڈیو اسکینڈل کی شفاف تحقیقات اور ملوث افراد کے خلاف کارروائی کرے، درخواست میں موقف۔ ویڈیو اسکینڈل سے متعلق تحقیقاتی کمیٹی کا اہم اجلاس طلب کیا گیا۔ شیری مزاری کہتی ہیں ویڈیو کے معاملے پر کمیٹی کا اجلاس 17 فروری کو ہوگا۔ یہ بھی کہا کہ لاپتہ افراد سے متعلق قانون سازی ناگزیر ہے۔ لاپتہ افراد کا معاملہ انتہائی اہم ہے۔ سینٹ انتخابات میں ٹکٹوں کی تقسیم پر کارکنان کے اعتراض کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمانی بورڈ کا ہنگامی اجلاس آج طلب کر لیا۔ وزیر اعظم پی ٹی آئی پارلیمانی بورڈ کے اجلاس میں سینٹ انتخابات میں ٹکٹوں کے معاملے پر پارٹی رہنماؤں سے مشاورت کریں گے۔ قریشی کی رات گئے کراچی آمد، ایئرپورٹ پر پی ٹی آئی کے عہدیداروں سے ملاقات۔ پارٹی عہدیداروں نے سینیٹ انتخابات میں ٹکٹوں کی تقسیم پر اپنے تحفظات سے آگاہ کیا، وزیر خارجہ کے معاملات کو حل کرانے کی یقین دہانی۔ سینٹ الیکشن کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا آج آخری روز ہے۔ 100 امیدواروں کے فارم الیکشن کمیشن کو موصول ہو گئے۔ جنرل نشستوں پر 51 ٹیکنوکریٹس کے لیے 18 کاغذات جمع، جبکہ 23 خواتین بھی الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں۔ تحریک انصاف سینٹرل سندھ ریجن کے عہدیداروں نے سینیٹ کے ٹکٹ کے معاملے پر شدید تحفظات کا اظہار کر دیا۔ حیدرآباد، سکھر اور نواب شاہ کے عہدیداروں نے گورنر سندھ عمران اسماعیل کو خط لکھ کر اپنی ناراضگی کا اظہار کیا۔ خط میں فیصل وابڈا اور ٹیکنوکریٹس سیٹ پر نامزد سیف آپو کو ٹکٹ دینے کے فیصلے کو غلط قرار دیا گیا۔ پی ٹی آئی کے خلاف مبینہ ممنوعہ فنڈنگ کے معاملے پر اسکروٹنی کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ درخواست گزار اکبر ایس بابر الیکشن کمیشن میں پیش، کہتے ہیں جس دن امپائر کی انگلی ہٹ گئی حقیقت سب پر عیاں ہو جائے گی، انصاف کے حصول کے لیے ہر سطح پر جاؤں گا۔ مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب کہتی ہیں اوپن بیلٹ کا شور عمران صاحب اپنی پارٹی کو بلیک میل کرنے کے لیے کر رہے تھے۔ سینیٹ ٹکٹ بیچنے پر اپنی جماعت نے بغاوت کر دی۔ پارٹی بغاوت نے عمران صاحب کے اوپن بیلٹ کے شوشے کی کلی کھول دی۔ سینٹ انتخابات کے لیے قومی اسمبلی کے تمام زیر حراست اراکین کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کا فیصلہ۔ شہباز شریف خواجہ آصف خورشید شاہ جیل میں ہے۔ پروڈکشن آرڈر کے لیے اسپیکر کو درخواست کر دی گئی۔ 2 مارچ کی شام تک زیر حراست اراکین کو اسلام آباد پہنچایا جائے گا۔ ترجمان الیکشن کمیشن کہتے ہیں سینیٹ انتخابات آزادانہ اور منصفانہ کروانے کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ غیر ضروری بیانات سے غیر جانبدارانہ حیثیت کو متنازع بنانے سے گریز کیا جائے۔ بلوچستان کے علاقے خوشاب میں دہشت گردوں کی افسی چیک پوسٹ پر فائرنگ، دہشت گردوں کی فائرنگ سے سپاہی اسد مہدی شہید،
तर्जुमान ISPR के मुताबिक जिला कीच के इलाके में दहशतगर्दों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन जारी है। दहशतगर्दों की तलाश और गिरफ्तारी के लिए इलाके को सील कर दिया गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट हमला केस की तहकीकात के लिए चीफ कमिश्नर ने JIT तश्कील दे दी। JIT में पुलिस और हसास इदारों के नुमाइंदे शामिल। JIT में SSP इन्वेस्टिगेशन, SSP CTD भी शामिल। JIT थाना मार्कला और रमना में इस्लामाबाद हाईकोर्ट हमला केस की तफ्तीश करेंगे। नोटिफिकेशन जारी। सुप्रीम कोर्ट में कर्क वाक़े और अक़लियतों के हकूक से मुतालिक केस की समाअत। अदालत ने कर्क में समादी की असर नो तामीर से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने रकम तो मुख्तस की मगर वहां अभी तक खाली मैदान पड़ा है। रमेश कुमार का एतराज, मतरूका वक्फ इमलाक ने 38 मिलियन दिए थे, उसका हिसाब नहीं दिया गया। क्या मुल्जिमान से पैसे रिकवर कर लिए गए? चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का एडवोकेट जनरल से इस्तिफसार। मुल्जिमान से पैसे रिकवर करने के लिए नोटिस जारी कर चुके हैं, एडवोकेट जनरल का जवाब। ज़र मुबादला के ज़खायर मुल्क की तारीख की रिकॉर्ड सतह पर हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट, कहते हैं गुज़श्ता साल की निस्बत रवां साल जनवरी में ज़र मुबादला के ज़खायर में 19% इजाफा हुआ। जनवरी में बैरून मुल्क से ज़र मुबादला के ज़खायर 2 अरब 27 करोड़ डॉलर रहे। गुज़श्ता मालियाती साल के मुकाबले में ज़र मुबादला में 24% इजाफा हुआ। गुज़श्ता 8 माह से ज़र मुबादला के ज़खायर में मुसलसल 2 अरब डॉलर का इजाफा हो रहा है। ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के खिलाफ रिटर्निंग ऑफिसर सेनेट इलेक्शन को तहरीरी दरखास्त इरसाल कर दी। वज़ीर आला सिंध को नाअहल करार दिया जाए, दरखास्त में मौक़िफ़। आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोल कितने रुपए महंगा होगा? वज़ीर आज़म इमरान खान आज हतमी फैसला करेंगे। ओकरा की जानिब से अगले 15 रोज के लिए पेट्रोल 16 रुपए फी लीटर तक महंगा करने की तजवीज पेट्रोलियम डिवीजन को अरसाल कर दी गई। समरी में डीजल 14 रुपए 75 पैसे फी लीटर महंगा करने की सिफारिश भी की गई। वजारत दाखिला ने वीजा पॉलिसी में बड़ी तब्दीलियां कर दी। कलील मुद्दती वीजे को सिक्योरिटी क्लियरेंस से मुस्तस्ना कर दिया गया। 30 रोज का मेडिकल और 3 माह का वर्क वीजा 48 घंटे में मिलेगा। पाकिस्तान ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक्शन प्लान के नुकात पर नुमाया पेशरफ्त कर ली। पाकिस्तान की रवा माह ग्रे लिस्ट से निकलने की राहें हमवार हो गई। कोरोना के खिलाफ तमाम तर कोशिशें तदाबीरें बेसूद। वायरस 24 घंटों में मजीद 26 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात 12,333 हो गई। मजीद 1,048 अफराद में वायरस की तशखीस। 5,64,000 से ज्यादा अफराद कोरोना वायरस में मुब्तला। 5,25,000 अफराद से एहतियात। 25,747 मरीज ज़ेर इलाज। वज़ीर तालीम पंजाब का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया। मुराद रास ने सोशल मीडिया पर टेस्ट मस्बत आने की तस्दीक कर दी। जितने लोगों ने मुझसे मुलाकात की वो अपने कोरोना टेस्ट करवाएं, वज़ीर तालीम पंजाब की हदायत। पाकिस्तान में 65 बरस और इससे जायद उम्र के अफराद के लिए खुशखबरी आ गई। हुकूमत ने बुजुर्ग अफराद को कोरोना वैक्सीन की डोज लगवाने के लिए रजिस्ट्रेशन का आगाज कर दिया। असद उमर कहते हैं कोरोना वैक्सीन मार्च में लगना शुरू होगी। बरतानिया पाकिस्तान को 1 करोड़ 70 लाख कोरोना डोज देगा। बरतानवी हवाई कमीशन का कहना है कि पाकिस्तान को कोरोना वैक्सीन अप्रैल से कबल दी जाएगी। पाकिस्तान को जून से कबल 10 मिलियन वैक्सीन मजीद फराहम की जाएंगी। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 24,11,000। मरीजों की तादाद 10 करोड़ 93 लाख तक जा पहुंची। अमेरिका में 4,97,000, ब्राजील में 2,39,000, भारत में 1,56,000, मैक्सिको में 1,74,000, रूस में 80,000, फ्रांस में 81,000, बरतानिया में 1,17,000 और सऊदी अरब में 6,433 अमवात।
ओपोजिशन जमातें सेनेट इलेक्शन और लॉन्ग मार्च की तैयारी करें। मौलाना फजलुर रहमान ने सरगोदा और खिस्तार में एहतजाजी जलसे मनसूख कर दिए। सरबराह पीडीएम और शाहिद खाकान अब्बासी में राब्ता। लॉन्ग मार्च की तैयारियों के हवाले से तफसीली गुफ्तगू। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर से सूबाई वजीर हाउसिंग मियां महमूदुर रशीद की मुलाकात। कहते हैं पीडीएम सर्दी की वजह से नहीं बल्कि वैसे ही ठंडी हो गई। वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन का जमहूरी हक है, लेकिन वो कामयाब नहीं होगी। सियासी मुखालफीन चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का नतीजा मत भूलें। इमरान खान बतौर वजीर आजम और हुकूमत दोनों 2023 तक कायम रहेंगे। हुकूमत का 18 महकमों की तनख्वाहों में इजाफा न करने का फैसला। 2,96,470 मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफा किया जाएगा। विफाकी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% हेडॉक इजाफे से कौमी खजाने पर 21 अरब सालाना का इजाफी बोझ पड़ेगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुत्तहिदा अरब अमारात के सफीर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फरोग देने पर तबादला ख्याल। मुलाकात में बाहमी ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने और सरमायाकारी को फरोग देने पर इत्तेफाक। मुत्तहिदा अरब अमारात की तामीराती शोबे और हेल्थ सेक्टर में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। उस्मान बुज़दार कहते हैं पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात में बरादराना ताल्लुकात हैं। सरमायाकारों के लिए एनओसीज के इजरा के अमल को आसान बनाया गया है। मुआवने खसूसी पंजाब फिरदौस आशिक अवान कहती हैं सियाहत के फरोग से जनूबी पंजाब की किस्मत बदलेगी, मुकामी लोगों को रोजगार मिलेगा। वजीर आजम इमरान खान ने पसमानदा इलाकों की तरक्की का जो वादा किया उसकी तकमील के लिए वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार बिला तफरीक तरक्याती मंसूबों का आगाज कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत अवामी खिदमत और तरक्की का सफर जारी रखेगी। पाक बहरिया की PNS कासिम मनोड़ा पर आलमी अमन मशकों का आखिरी सेशन। नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी कहते हैं मश्क अमन 40 ममालिक को यकजा होने का पैगाम देती है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा पाकिस्तान ने हमेशा अमन के कयाम के लिए इकदाम किए। भारत बहरे हिंद में एटमी हथियारों के फैलाव का बायस है। पाकिस्तान अहम मैरीटाइम स्टेट है। अली सतपारा और दो साथी कोपहमाओं का 9 रोज बाद भी कोई सुराग न मिल सका। कोपहमाओं की तलाश में जदीद टेक्नोलॉजी से मदद ली गई। पाक फौज ने F-16 तैयारों से इलाके की सर्चिंग में मदद दी। आइसलैंड के सैटेलाइट ने जदीद टेक्नोलॉजी से इलाके की तस्वीर बनाई। कोपहमाओं की तलाश में जिमनी सर्च ऑपरेशन भी किया गया। अली सतपारा की फैमिली और हुकाम की तरफ से आज न्यूज कॉन्फ्रेंस मुतवक्का। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक कहते हैं मुल्क को करप्शन से बचाने के लिए सियासतदानों की वैक्सीनेशन की जरूरत है। कोरोना खौफनाक लेकिन करप्शन इससे बड़ी बीमारी है। इतनी जल्दी धीमक लकड़ी को नुकसान नहीं पहुंचाती जितना इन नाअहल और नालायक हुक्मरानों ने मुल्क को पहुंचाया है। सेनेटर सिराजुल हक का वजीराबाद में जलसे से खिताब। रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में रिकॉर्ड बर्फबारी, मामूलाती जिंदगी दरहम बरहम। शहरी घरों में महसूर, परवाजों का शेड्यूल भी मुतासिर। जगह जगह गाड़ियां फंस गई। इंतजामिया सड़कों को क्लियर करने में मसरूफ। इसराइल की जानिब से शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क पर मिसाइलों से हमला किया गया, जिसे शामी एयर डिफेंस ने नाकाम बना दिया। मजीद इसराइली हमलों की पेश नजर फजाई दिफाई निजाम मुतहर्रिक कर दिया। इसराइल के मिसाइल हमलों में सिर्फ इमलाक को नुकसान पहुंचा। मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से भेजे जाने वाले खलाए मिशन होप ने पहली तस्वीर भेज दी। तस्वीर मरीख के मैदान में दाखिल होते वक्त ली गई। होप, जिसे अरबी में अलमलल कहा जाता है, कम अज कम एक मरीखी साल यानी 687 दिन तक इस सुर्ख सियारे के मैदान में। पाकिस्तान के लिए एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले कौमी हीरो अरशद मलिक इंतकाल कर गए। अहले खाना ने तस्दीक कर दी, मरहूम की उम्र 73 साल थी।
अरशद मलिक ने 1974 में बैंकॉक में होने वाली एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता था। कौमी टीम के हेड कोच मिसबाह उल हक का कहना है कि हमने 12वें नंबर की टीम को नहीं बल्कि जनूबी अफ्रीका को शिकस्त दी है, लेकिन जीत के बावजूद खामियों पर नजर है। जीत होती है, जीत के लिए हमें फाइट करना पड़ी। जनूबी अफ्रीका की टीम में बड़े प्लेयर्स नहीं थे, लेकिन वो अफ्रीका के बेहतरीन T20 प्लेयर्स हैं। क्रिकेट शायकीन के लिए बड़ी खुशखबरी, PSL 6 के लिए टिकटों की ऑनलाइन फरोख्त का आगाज कर दिया गया। पहले मरहले में कराची के मुकाबलों के टिकट दस्तयाब। क्रिकेटर मोहम्मद हफीज ने PSL का मैच स्टेडियम में देखने के लिए आने वाले तमाशाइयों से जिम्मेदारी और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की दरखास्त कर दी। 20% क्राउड को इजाजत मिली है। क्राउड को इजाजत मिलना एक अच्छा फैसला है। पंजाब में सुबह के वक्त धुंध का राज बरकरार, शदीद धुंध के बायस हद निगाह कम हो गई। ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हुई। मोटरवे कई मकामात से कुछ घंटों के लिए बंद करना पड़ी। एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट ऑपरेशन भी मुअत्तल रहा। मोहब्बत और जिंदगी की तल्ख हकीकतों को शेर की जबान में बयान करने वाले असदुल्लाह गालिब को दुनिया से गुजरे 142 बरस बीत गए, मगर उनका कलाम आज भी जिंदा है। उन्होंने उर्दू शायरी में एक नई रूह फूंकी और उसे जिंदगी की हरारत बख्शकर इंसानी नफ्सियात को इशार का लिबास पहनाया।